Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this episode. We know it very well that education is the key in the development of an individual and in the development of society. We have known it based on our interaction in the last few episodes that the education has also undergone a sea change. Like 1000 years back, the way of acquiring knowledge was different than what we have as on today. Even 200 years back, it was different. 50 years back, it was different. But nowadays, when it comes to acquiring knowledge or getting education, we have got different mode. And you are all aware of online mode and offline mode. Work in the office, physical mode, and the online mode or work from home. I mean, this all is very clear to us, and we are making use of that well. So initially we used to have landline phones which were connected through a wire, and then we were able to talk to each other, those people who were away from us. Later on we got these mobiles which helped us in remaining in touch with the people even if we were not at home. And then these mobiles started having a few more things, sending messages, then sending emails, etc. And then ultimately we had the social media sites like Facebook, and then initially it was Orkut. And these have helped people in many ways. Many people got connected after many, many years because of these social media sites. But anything which comes for good also takes along certain things which are not very good. And when it comes to these social media sites nowadays, these are causing lot many problems also. And the misuse or not the correct use of these social media sites has forced one of the countries to take a corrective measure. And what they're trying to do is not banning these social media sites in their country completely, but making it sure that no child less than age of 16 years is able to access these social media sites. They are already getting into a situation where they'll have a law enacted in their parliament which would have to be enforced and by these social media sites. और उनको तो उनके ऊपर दंड लगाया जाएगा अगर वो 16 साल से कम के बच्चों के लिए ये सोशल मीडिया साइट्स को अवेलेबल कराएंगे. अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है या कोई भी इस उम्र से कम का बच्चा एक्सेस करने की कोशिश करता है, दैट हैज़ गॉट टू बी रिपोर्टेड, रादर नॉट रिपोर्टेड, दे विल हैव टू स्टॉप इट, दैट दे डोंट एक्सेस इट एट ऑल. अब इसके ऊपर बहस हो सकती है, चर्चा चल भी रही है कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ी एक उनकी बचपन में इम्प्रेशनेबल एज है, उतना उसका शायद इस्तेमाल कम और ज़रूरत के लिए, लेकिन दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कई बार बढ़ जाता है. और आप इस बात को जानते हैं, ये सब लोगों को पता है कि जो छोटी छोटी रील्स टिकटॉक पे या इस तरह से बना करके इंस्टाग्राम पे डाली जाती है, आप छोड़िए बच्चों की बात, मैंने तो और बड़ों से भी बात की है कि इफ somebody gets into watching one particular information, then they keep on rolling it down, and they don't know how did they really spend 30 minutes or 45 minutes on that, and later on they realize that we have wasted 45 minutes for no gain at all as far as the knowledge is concerned or education is concerned. Because वो इतना ल्यूरिंग होता है, इतना ज़्यादा आपको अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है कि आप उससे निकल नहीं पाते. और जब बड़े इस तरह की सिचुएशन में आ सकते हैं तो आप बच्चों की तो देखिए कि बच्चे तो बहुत जल्दी इसका शिकार हो सकते हैं. तो इसी दौरान में बाकी सरकारें भी, बाकी कंट्रीज भी, और जब हम यूएन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इस पर चर्चा हुई, और ख़ासकर बच्चों के बारे में ये बातें होती है कि बच्चों को इससे कैसे बचाया जाए. आज के वक्त में देखिए, बच्चों से मोबाइल छीन लेना या मोबाइल उनको अवेलेबल ना हो, लैपटॉप अवेलेबल ना हो, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है. कारण क्या है कि बहुत सारी बातें आजकल, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, और एक्चुअली ये आया बाहर से और उसको हमने ऐसा मान लिया कि सेंडिंग मैसेजेस, मेकिंग ए स्कूल पेपर फ्री इज द ओनली थिंग विच विल सेव दिस एनवायरनमेंट. बट सी व्हाट हैज हैपेंड इन बिटवीन, दैट व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन टू द पेरेंट्स एंड टू द चिल्ड्रन, वेदर इट इज a message regarding some change in timetable or some change in time,
और समथिंग लाइक दैट, और द होमवर्क एंड ऑल दैट। सो बच्चों को पर फोर्स और पेरेंट्स को ये एक्सेस करना पड़ता है, और जब वो एक्सेस वो करते हैं तो साथ में चूंकि ये सोशल मीडिया साइट्स को भी अपनी प्रेजेंस वहाँ पर रखनी है, तो वो ये भी एक्सेस कर लेते हैं, और जब वो ये एक्सेस कर लेते हैं तो नेचुरली फिर वो कहाँ से कहाँ कब चले जाते हैं हम लोगों को नहीं पता चलता। हमारे बच्चे किस तरह से शिकार होते हैं, एक कोई उन्होंने कोई फोटो देखा या कोई वीडियो देखा, उसको लाइक कर दिया, तो जो बहुत ही शैतान किस्म के लोग हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं और उसको फंसा लेते हैं, जिसको कई बार कहते हैं कि भाई डिजिटल लिटरेसी बच्चों के पास होनी चाहिए। और इसके बारे में बातें भी खूब हो रही हैं, काफ़ी कुछ हो भी रहा है, बट जब रोज़मर्रा की बात आती है तो हम बच्चों को शायद उतना नहीं बता पाते हैं। स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स जितना समय उनको मिलता है और जितनी समझ है वो कोशिश करते हैं, लेकिन समझ कितनी है ये हमें देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक जिक्र करूं कि जब चाइल्ड सेफ्टी की बात आती है, बच्चों की सेफ्टी की बात आती है, तो हम सबको मिलकर के उसमें बड़ा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और प्रिवेंटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे के साथ कुछ हो गया उसके बाद हम कोई एक्शन ले रहे हैं, ये वो भी एक्शन लेना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर ये किया जाए कि भाई बच्चों के साथ वो स्थिति आई ही ना, तो उस तरह से हमें भी एजुकेट होना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा। और ये एजुकेशन इन एडिशन टू व्हाट वी टीच देयर इन द क्लासरूम, उससे डिफरेंट, उससे बढ़ करके हमें ये बात अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो फिर वो बाकी पढ़ाई का और उसका कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाएगा। आप देखें कि अभी हमारे यहाँ पर 2012 में हमारी सरकार एक एक्ट लाई थी, पोक्सो एक्ट जिसका नाम दिया, उसकी काफ़ी चर्चा रही, और हमारे शायद बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे एडल्ट हमारे बच गए हैं इस एक्ट के आने के बाद में। लेकिन फिर भी अखबारों में पढ़ने को मिलता है और देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये घटना घट गई, वहाँ पे वो घटना घट गई, और कई बार तो ये भी होता है कि घर में भी कुछ इस तरह की घटना घट जाती है, कई बार स्कूलों में भी ये चर्चा आती है कि भाई इस तरह की घटना घटी। तो अब इसके बारे में कितने लोग हैं, जो मैं पेरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, और मैं टीचर्स की भी बात करता हूँ, कितने लोगों ने पोक्सो एक्ट को ठीक से पढ़ा हुआ है। और खासकर मैं बच्चों से संबंधित बात करूंगा, हमें बाकी का भी पढ़ना चाहिए बट बच्चों से संबंधित बात करूंगा, और उसमें मैं चाहूंगा आप लोगों को, सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं कोई आई एम नॉट ए लॉयर सो आई कांट रियली एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट वेल एज ए लॉयर कैन डू इट टू, बट देन इफ यू रीड दीज थिंग्स प्रॉपरली, उसमें से कुछ आर्टिकल्स बच्चों के बारे में पढ़ लीजिए। सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 आप पढ़ लीजिए। देखिए सेक्शन 15 को उन्होंने 1, 2 और 3 में बांटा है, ये बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में ही है, और वहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात की है, और कई बार इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज ऑफ somebody being mentally distorted, somebody using this particular thing for earning money out of it। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर 2024 का जो एक डिसीजन दिया है, मद्रास हाई कोर्ट के रूलिंग को क्वेश्चन किया है, और उन्होंने सरकार को भी इसके लिए एडवाइस किया है कि भाई इसको आप चेंज कीजिए और इसको कह दीजिए चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। डोंट कॉल इट एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी बट से इट एज चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल। और कोई भी मटेरियल इस तरह का अगर बच्चों को इन्वॉल्व करके बनाया जाता है या देखा जाता है या डिस्प्ले किया जाता है या जिसको ट्रांसमिट किया जाता है, ये पनिशेबल है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये, और इस पोक्सो एक्ट के अंदर इसमें मुकदमा चलेगा और सजा भी उसी के अंदर होगी। तो ये अगर आप सब लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद को भी इसकी ज़्यादा समझ आएगी, और हम अपने बच्चों को भी ये बात समझा सकते हैं कि कई बार ये देखा जाता है कि एक कोई क्लिप, कोई भी ऑब्सीन फोटो या कोई वीडियो इस तरह का है, एक जगह से एक बच्चे को कहीं से उसका एक्सेस हुआ, उसने दूसरे को भेज दिया, उसने तीसरे को भेज दिया। देखिए ये सब जो है अब ये ठीक नहीं है, ये लॉ के अगेंस्ट तो है ही है, ये एथिकली भी बहुत बहुत गलत है, क्योंकि बच्चों को एक्सप्लॉइट करना फॉर somebody's monetary gain और somebody being mentally distorted is not right। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं बच्चे हमारी पूंजी हैं, बच्चे हमारा भविष्य है, और अगर हम बच्चों को अपनों को एक धन कमाने का एक जरिया बनने देंगे, क्योंकि किसी बच्चे के साथ अगर ये दुर्भावना पूर्वक कुछ कर दिया गया और उस बच्चे का ये इस तरह का बाहर आ जाता है पब्लिकली, तो कितना उस बच्चे के ऊपर मेंटली प्रभाव पड़ता है।
तो मेरी आपसे सलाह ये रहेगी कि इस बात के ऊपर ध्यान दें कि हमारे जो बच्चे हैं वो किस तरह का जो गैजेट जो भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो या आईपैड हो। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग अपने बच्चों की इस बात पर ध्यान रखें कि वो क्या एक्सेस कर रहे हैं, हम उन बच्चों को अपनों को समझाएं, उनको इस बात की सलाह दें। ये टीचर्स का भी जिम्मेवारी है और अब ये पेरेंट्स की जिम्मेवारी भी है कि बच्चों को बताएं कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। भाई देखिए, हम बहुत सारी चीज़ें देखिए, लॉ तो अपनी जगह है, लॉ इज़ इम्पोर्टेंट और लॉ को इन्फोर्स करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का काम है, वो कर रही है बखूबी इस बात को। लेकिन हम लोगों का भी एज समाज ये की जिम्मेवारी बनती है कि हम मोरल्स और एथिक्स को भी बहुत ऊपर रखें। मोरली हम उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, एथिकली जो ठीक नहीं है इस बात का भी। और जब हम खुद इस बात का ध्यान रखेंगे, जब हमें इस बात की समझ होगी, तो शायद हम अपने बच्चों को भी इसके बारे में बता पाएंगे। तो जो 3-4 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को जो सजेस्ट की हैं, उनमें एक तो ये बात जो मैंने बात को कही कि इसको CSEAM बोले, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज मटेरियल कोई भी ना तो प्रोड्यूस कर सकता, ना उसको ट्रांसमिट कर सकता, ना उसको स्टोर कर सकता, ना उसको देख सकता, ना उसको डाउनलोड कर सकता। ये आप ध्यान रखिए इस बात को। और इस जजमेंट में जो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वो तो सिर्फ उसके पास था इस तरह का मटेरियल, उस प्राणी के पास, तो उसने तो किसी को दिया नहीं, उसने तो सिर्फ खुद ने उसको कंज्यूम किया। बट नहीं, देखिए, अगर कोई कंज्यूम करने वाला नहीं होगा तो नेचुरली वो मटेरियल बनेगा भी नहीं। सो इवन पोजेशन ऑफ दैट वुड बी पनिशेबल। इस चीज़ को सबको समझना चाहिए। ये कई बार बच्चे तो जैसे मैंने आपको कहा कि उतना समझ उनको नहीं होती। कई बार बाहर है, मीडिया है, आप देख रहे हैं कि इतना सब कुछ चारों तरफ चल रहा है। कई बार जब रिपोर्ट होता है तो भी उनको वहाँ से आइडिया लगता है और वो फिर उसको एक्सप्लोर करने लगते हैं। तो हम अपने बच्चों को ये सलाह दें कि भाई ये इस पे थोड़ा नज़र रखें, अपने आप को किसी भी अनजान जिसको हम जानते ना हो। और मैं कहता हूं कि व्हेन इट कम्स टू द फोटो और द वीडियो, मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूं। मैं तो बच्चों को ही नहीं, मैं बड़ों को भी बोलता हूं कि अपने फोटो अपने वीडियो हम किसी के साथ भी क्यों शेयर करें, जब तक कि वो किसी ऐसी बात के लिए ज़रूरी नहीं हो, मेरा अपना हो, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे मेरे रिलेटिव में से कोई है जिनको मैं ये अपना डांस दिखाना चाहता हूँ, या अपनी ड्रेस दिखाना चाहता हूँ, या अपनी यूनिफॉर्म दिखाना चाहता हूँ, अपनी कॉस्ट्यूम दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी इस तरह का जब तक ना हो, हम क्यों किसी के पास ये अपना वीडियो या फोटोग्राफ भेजें। और अनजान लोगों से जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, मेरी तो एज इंडिविजुअल दरखास्त है अपनी सरकार से भी कि भाई इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक लॉ ला रही है, अपने यहाँ भी लाना चाहिए कि बच्चे सोशल मीडिया साइट्स एक्सेस ही ना कर पाएँ। कुछ इस तरह का यहाँ पे भी लॉ पास हो। देखा जाए तो एक एज लिमिट है, उस एज लिमिट से कम के बच्चे ये अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, लेकिन हो रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं। तो इन बच्चों को हम समझाएं और इनको कहें कि भाई बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व मत हो। और मैंने आपको एक बार पहले भी कभी जिक्र किया था कि बिकॉज ऑफ दीज साइट्स बीइंग अवेलेबल टू द चिल्ड्रन, देयर आर मेनी फाइट्स विच टेक प्लेस इन द स्कूल्स बिकॉज ऑफ सम इशू आउटसाइड, एंड समटाइम्स इवन आउटसाइड बिकॉज ऑफ सम इशू विच वुड हैव हैपेंड इन द स्कूल्स। तो हमने इनको फायदेमंद बनाने के बजाय कई बार हमारे बच्चे इसका एक विक्टिम बन जा रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों को विक्टिम होने से बचाना है। दूसरी बात है, कई बार आती है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि सेक्स एजुकेशन को बच्चों को बारे में इसका ज़रूर बताएं। और हमारे पास इस तरह के तरीके होने चाहिए कि जो विक्टिम है या जिसने इस तरह का इस गलत काम किया है, विक्टिम को हम थोड़ा सा काउंसिल कर पाएँ, समझा पाएँ, उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाएँ। अगर ऐसा कोई होता है और जिसने ये गलत किया है उसको बराबर पनिशमेंट मिले और वो रिहेबिलिटेट होए, इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उन्होंने तो यहाँ कहा है कि भाई आप वही प्रीएम्प्टिव जो मैं बात कर रहा था, इस तरह की बात होनी चाहिए कि वी शुड कम टू नो अबाउट एन इशू इफ ए चाइल्ड इज हैविंग इवन बिफोर इट इज नॉन अदरवाइज। हमें पहले ही बच्चे से जब हम लगातार बात करते रहेंगे, बच्चे के साथ ज़्यादा मिल करके रहेंगे, तो हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। और आप तो जानते हैं इस बात को कि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट से, IT एक्सपर्ट से बात कर लेना, आपके पास में पेरेंटल कंट्रोल हो सकता है इवन इफ द चाइल्ड इज यूजिंग मोबाइल फॉर बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस। सो आप उसका कंट्रोल रख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा किस बच्चे ने किसको क्या मैसेज किया, क्या फोटो भेजा, क्या फोटो उसके पास आया, क्या वीडियो भेजा, क्या वीडियो, आप ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनको हम एकदम रोक देंगे ये संभव नहीं है, सरकार भी नहीं रोक पाएगी। लेकिन एक जैसे हमने कहा कि छाता बन करके हम वो उतना ही चीज़ें बच्चों के पास जाने दें छन करके जो कि उनके काम आ सकती हैं। बट उसके लिए जैसे मैंने कहा
कि हमें पोक्सो एक्ट ठीक से पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा आईटी एक्ट क्या है, आईटी एक्ट 67B सेक्शन आप देखिए उसको। अगर हम ये चीज़ें जानकारी रखेंगे एज पेरेंट्स एज एडल्ट, तो हम अपने बच्चों को बता पाएंगे, और हमारे बच्चे ऐसे नहीं है नहीं समझेंगे। मैं आपको फिर इस बात के लिए दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम अपने बच्चों को ठीक से समझाएंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, वो हमारी बात मानेंगे। हो सकता है कभी उनसे कोई चूक हो जाए, गलती हो जाए दोस्तों के साथ या किसी कारणवश, बट उसके बाद भी वो जल्दी समझ जाते हैं और जल्दी ही करेक्ट अपने आप को कर लेते हैं। हम लोग अपने बच्चों से लगातार बात करें, और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि इन एक्ट्स को पढ़ें जिसमें हमारे बच्चों को या बड़ों को भी तकलीफ हो सकती है, उनको ध्यान से सीखें और उनसे बचने की कोशिश करें। और मैं फिर बार बार कहूँगा कि लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कायदे कानून, देश के नियम, रूल्स पार्लियामेंट ने पास किए, सुप्रीम कोर्ट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एथिक्स, हमारा मोरल। सिर्फ और सिर्फ कमाना, सिर्फ सिर्फ एक पोजीशन प्राप्त करना, आगे बढ़ जाना ही हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। हमारा ध्येय एक अच्छा इंसान बनने का और बनाने का होना चाहिए। और जब हम अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे इंसान बनेंगे। उनको कौन रोक सकता है अच्छे इंसान बनने से, बिकॉज एजुकेशन तो उनके पास में अच्छी है ही अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू सब्जेक्ट्स। सो मैं समझता हूँ आप लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे और हम सब मिल करके अपने बच्चों को ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट दे पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, गॉड ब्लेस अस ऑल।